Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. आप में से कोई ये श्लोक शेयर कर सकता है स्क्रीन पर? So the verse can be seen now. Yes. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। विशेषजात्मनः कायं नाभिनादं तमोमयं जग्रहुर्यक्ष राक्षस्मि रात्रिं शुतधृत् संबुद्भवाम। Translation: Out of disgust, Brahma threw off the body of ignorance, and taking this opportunity, the Rakshasa and the Yakshas sprang for the possession of the body, which continued to exist in the form of night. Night is the source of hunger and thirst. Shutadridbhayam upashristasute tam jagdaham abhidudruvaha ma rakshasitanam Jakashadavam iti uchyashuta tridadritaha. Overpowered by hunger and thirst, they ran to devour Brahmas from all sides and cried, "Spare him not, eat him up." The representatives of the Yakshas and Rakshasas still exist in some countries of the world. It is understood that such uncivilized men take pleasure in killing their own grandfathers and holding a love feast by roasting their bodies. Wow. देवस्थानाः संविघ्नो मामां जक्षट रक्षत अहो मे यक्ष रक्षसास्मि प्रजयूयं बहुवीतः. Brahma, the head of the demigod, full of anxiety, then asked them, "Do not eat me but protect me. You are born from me and become my sons. Therefore you are Yakshas and Rakshasas." The demons who were born from the body of Brahma were called Yakshas and Rakshasas because some of them cried that Brahma should be eaten and others cried that he should not be protected. Thus, the ones who said he should be eaten were called Yakshas, and one who said he should not be protected became Rakshasas, man-eaters. The two Yakshas and Rakshasas are the origin creation of Brahma and represented everything until today in the uncivilized men who are scattered across the universe. They are born of mode of ignorance, and therefore because of their behavior they are called Rakshasas or man-eaters. So, ये जो 3 श्लोक है इसमें ये बताया गया है कि ब्रह्मा ने किस प्रकार से राक्षस और यक्षों का निर्माण किया। राक्षस वो होते हैं जो मनुष्य को खाते हैं, और ऐसे कई प्रकार के राक्षस जो है श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इस जीवन में हमारे इस पर्टिकुलर यूनिवर्स में स्कैटर्ड है, जिसको हम कभी कभी आदिवासी भी कहते हैं, अबॉर्गेनिज भी कहते हैं. देयर आर सम ऑफ दिस पीपल जो जीव हत्या करने में, मनुष्य को भी हत्या करके खाने में रुचि रखते हैं. अब जब इन सब चीजों को आप देखते हैं तो मैं एक कमेंट्री पढ़ता हूँ बाय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्लोक नंबर 19 के लिए. तो लिखते हैं कि उसमें पर्टिकुलरली स्पेशली उसमें लिखा है श्लोक 19 में, एक मिनट, आई विल टेक यू बैक टू 19. आउट ऑफ डिस्गस्ट ब्रह्मा थ्रू आउट द बॉडी ऑफ इग्नोरेंस एंड टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी. तो ब्रह्मा जो था वो खुश नहीं था कि उनके ऊपर तमोगुण कंप्लीटली आ गया था. तो उसमें लिखा है
Brahma was not pleased by the shadow body. Oh, I have been covered by ignorance at the beginning of creation. सृष्टि की रचना करते करते सबसे पहले सत्व गुण के बजाय उनके ऊपर क्या आ गया? तमोगुण आ गया। तो वो खुश नहीं थे। बोला मैंने इतने साल की तपस्या की, 100 वर्ष ब्रह्मा ने भगवान की सेवा की। After 100 years, this is what happened. Criticizing himself, he gave up the body. ऐसा अपने आप को उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया। The rejected body became the night. तो वो जो शरीर जो उन्होंने त्याग दिया वो बन गया रात्रि। और रात्रि जो होता है वो भूख और प्यास का निर्माण करता है। Because when you are in the mode of ignorance, you are more thirsty and hungry. Like you take the case of परीक्षित महाराज, जब वो बैठ गए श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए तो 7 दिन ना कुछ खाया ना कुछ पिया, उसको कुछ समझा ही नहीं कि क्या हो रहा है। उनका माइंड पूरा किस में था? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में था और उनकी लीलाओं के बारे में बखान सुनने में था। So there was no ignorance over there. So there was no thirst and no hunger. Because night matlab nisha. Nisha also means avidya. The rejected body became night. The demons who had arisen from the Brahma's body at that time accepted the night. इसके लिए वो जो शरीर जो जब रात्रि बन गया तो यक्ष और राक्षस सबसे ज्यादा पावरफुल कब होते हैं? रात में होते हैं। जैसे ही सूर्य जो अस्त हो जाता है, इनकी शक्तियां बढ़ जाती है। इट मीन्स दैट इसके अंदर हमको एक चीज जो विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं, वो कहते हैं कि अविद्या, अधर्म, आवरण और विक्षेप ये यक्ष और राक्षसों के सर्वोपरि है। तो इसके ऊपर हम चर्चा जरूर करेंगे आज की ये जो 4 जो माया के जो सबसे निपुण अस्त्र है वो किस प्रकार से हमको गुमराह कर देते हैं। Then Brahma gave up the body which produced hunger and thirst. तो ब्रह्मा ने उस शरीर को भी त्याग दिया जिससे कि हंगर और थर्स्ट आया था। When it is said that Brahma gave up the body, it means he gave up the mentality of the body. शरीर गिव अप करने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को खत्म कर देना, उस मनोवृत्ति को अपने आप से अलग करने को गिव अप कहते हैं। अभी हमारे पास भी कई प्रकार के व्याधियां हमारे शरीर में हैं। There are so many विकार in our bodies और हम सबको पता है कि हम किससे जूझ रहे हैं। तो इसमें जो है उस चीज को त्याग देना मतलब उस शरीर को त्याग देना। शरीर त्यागने का मतलब इस स्थूल शरीर को न त्याग करके इसके अंदर जो विकार वाले शरीर है उसको त्यागना है। ऐसे विश्वनाथ चक्र ठाकुर हमको बताते हैं। He gave up the mentality of this body. Since Brahma lives for 100 years, the sequence as follows: Tamas arose first, anger and the rest. The mentality arising from Tamas appeared in the mind of Brahma. From that the Yakshas and Rakshas appeared. The mentality of Tamas, when Brahma rejected it, became night, and Yakshas and Rakshas rejected it. तो जैसे ही उस मनोवृत्ति को ब्रह्मा ने त्याग दिया तो वो रात्रि बन गई और राक्षस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसके लिए राक्षसों का समय होता है रात्रि का समय। भूत पिशाच गण जो यक्ष राक्षस सब होते हैं। Though Brahma accepted and rejected different bodies by his power of yoga to carry on the creation, this does not disrupt his life of 100 years. तो ब्रह्मा जब विसर्ग कर रहे थे, सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो उस समय कई दफे ऐसा हुआ कि उनको उनका शरीर त्यागना पड़ा। कौन सा शरीर? मनोवृत्ति वाला शरीर। और उसको त्याग करके उन्होंने क्या किया? सृष्टि की रचना शुरू रखी। लेकिन उनके जो 100 वर्ष का जो जीवन काल था, दैट इज 340 ट्रिलियन 11 बिलियन ईयर्स जो है, उसमें कितने शून्य है वो तो हमको भी नहीं पता है। लेकिन उनके उस जीवन काल में उनको उसका कोई तकलीफ नहीं हुआ। तकलीफ ना होने का कारण क्या है? जब उन्होंने 100 ईयर्स का तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, सबसे पहले उन्होंने नारायण से क्या कहा कि प्रभु, मैं सदैव आपके चरण कमल का दास रहूं और आपको मैं कभी भूल ना पाऊं, क्योंकि ये जो सृष्टि की रचना करने का जो प्रक्रिया है इसमें मुझसे गलतियां हो सकती है, मैं भूल सकता हूं, और आपको भूलना मतलब अविद्या में आना। तो यही हमको भी सीखना चाहिए ब्रह्मदेव से कि हम जो भी कार्य करें, वी आर ऑल बिजी इन आवर डे टू डे लाइफ। नौकरी करना है, पैसे कमाने हैं, बीवी बच्चों का पालन पोषण करना है, खुद का भी देखना है, उनको भी सब कुछ करना है। लेकिन ये सब करते हुए अगर हम इसके अंदर बुरी तरीके से फंस जाए और अगर भगवान को भूल जाए तो हमारे अंदर अविद्या जागृत होती है। तो जैसे कि माया के 4 निपुण अस्त्र क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे लिखा है, सबसे पहला है अविद्या।
अविद्या का मतलब इग्नोरेंस, वो विद्या जो आपको भगवान से दूर कर देता है उसको भी अविद्या कहते हैं, जिसको हम मॉडर्न साइंस में न्यू एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। दूसरा है अधर्म। धर्म के पाथ से हम लोग विमुख हो जाते हैं। धर्म के जब रास्ते से हम विमुख हो जाते हैं, अधर्म के पात्र बनते हैं। तीसरा है आवरण। आवरण मतलब एक चद्दर डाल देना या एक कर्टन डाल देना। तो उसका सबसे सिंपल और लॉजिकल क्वेश्चन है, हाउ आर यू प्रभु? फाइन, थैंक यू प्रभु। हाउ इज एवरीथिंग? एवरीथिंग इज ग्रेट प्रभु, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन क्या सही चल रहा है? अगर आप थोड़ा सा उसकी जिंदगी में झांक कर देखोगे तो एक लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है। लेकिन माया का आवरणी शक्ति क्या बोलती? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ सही है। वो है आवरण। और लास्ट जो माया का अचूक अस्त्र है वो है विक्षेप। ये जो विक्षेप अस्त्र जो है वो इस प्रकार से हम लोगों को भ्रमित कर देता है कि हम भगवान के द्वार पहुंचते पहुंचते कहीं और पहुंच जाते हैं। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वेपन ऑफ माया देवी, जिसके बारे में दशमूल तत्व में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इसका बहुत अच्छा विवरण देते हैं कि कैसे होता है। तो हम शुरू करते हैं अविद्या से। तो अविद्या में अगर आप देखो तो अगर आप जस्ट इफ यू पुट अविद्या इन भागवतम में जाके वेदाबेस में जाके सर्च टाइप डालो अविद्या, सो टोटल यू विल गेट अराउंड almost 500 times avidya has been used by Srila Prabhupada in his lectures. और इसके बारे में वो कहते हैं, श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, so there are two kinds of knowledge, vidya and avidya. And avidya, कर्मज्ञ, अविद्या, विद्या means to learn technology, and अविद्या तो कहते हैं कि अविद्या वो है जो पढ़ने के बाद में हमको भगवान के ऊपर संशय हो जाता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? या सो जब भी हम कहते हैं कि अविद्या, तो अविद्या का क्लासिक एग्जाम्पल हम में से कोई दे सकता है? एनीबॉडी वुड लाइक टू टेक अ कॉल? स्टडीज ऑफ मटेरियल साइंस। एब्सोल्युटली। तो उसमें जब ये कहते हैं कि हम बंदर से इंसान बने, तो इससे बड़ा और बड़ा अविद्या और क्या हो सकता है? आप सोच के देखिए कि इसके ऊपर एक छोटी सी चर्चा है। मेरा एक प्रश्न है, अगर आप में से कोई इसका उत्तर दे सके तो मैं आपको जीवन भर आभारी मानूंगा। कहते हैं कि बंदर से इंसान बना, तो ये कौन सा समय था जब सृष्टि की रचना करने वाले ने बोला कि बंदर अब इंसान बनो? और जब वो बंदर इंसान बनता चला गया तो वो प्रोडक्शन को शुरू कब किसने बोला करने के लिए? और अभी ठीक है, अभी इंसान काफी हो गया, अभी बंदर इंसान मत बनो। और अगर कल को हम लोग फिर सब खत्म हो गए, बड़ा वर्ल्ड वॉर हो गया, तो क्या वो बंदर से फिर इंसान बन पाएगा? So who gave this instruction? Now you can start becoming humans. Now you should stop becoming human because we have enough humans. And in future, if required, we will again start making humans. आप सोच के देखिए, इसमें इससे बड़ा अविद्या क्या हो सकता है? तो कभी कभी मेरे मित्रगण मुझे बोलते हैं कि प्रभु हम लोग बंदर से इंसान बने, तो आई टेल देम ये धरोहर आपको मुबारक हो, आप बंदर से इंसान बने होंगे, मैं नहीं। हमारा धरोहर तो इंसान का ही था और हम इंसान के ही बच्चे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप बंदर से इंसान बनो। हाँ, इसमें एक पार्शियल है कि महाभारत में ऐसा लिखा गया है कि 3 पशुओं का हत्या नहीं कर सकते, गौमाता, सिंह, शेर, लायन और बंदर। क्योंकि गौमाता के शरीर के अंदर जो जीव है वो बाद में मनुष्य योनि में सत्व गुण में बॉर्न होता है, और शेर से जो निकलता है जीव वो रजोगुणी मतलब क्षत्रिय धर्म में आता है, और बंदर से इंसान जो बनता है वो तमोगुणी में आता है। ओके, तो इस प्रकार से तो डार्विन वाज पार्शियली राइट दैट बंदर से इंसान बने, लेकिन बंदर इंसान नहीं बना। बंदर के योनि से मनुष्य योनि में जीव आया, वो उसको समझ में नहीं था। तो ये सबसे बड़ा अविद्या का कारण है। दूसरा अविद्या में क्या बोलते हैं? बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी में कोई जगह आप स्टडी करोगे, मैं तो साइंटिस्ट नहीं हूँ लेकिन जितना पढ़ सका मैंने पढ़ा, तो कहते हैं कि एक ऐसा विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में से सब कुछ निकल गया बाहर। ये कैसा विस्फोट था कि ये ऐसा टाइप का विस्फोट था जिसमें से सब कुछ अच्छा हो। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 2 बम डाल दिए, जबरदस्त विस्फोट हुआ।
लेकिन आज तक उसमें से कुछ अच्छा नहीं निकला। उसके बाद कई प्रकार के विस्फोट हुए, लेकिन क्या अच्छा निकला? तो हाउ इज इट दैट ओनली वन टाइम दिस ग्रेट ब्लास्ट क्रिएटेड एवरीथिंग परफेक्ट इन सिंक्रोनाइजेशन की सब कुछ चला, उसके बाद सारे के सारे फेल हो गए? ये अविद्या का दूसरा कारण है। और अविद्या का सबसे बड़ा जो जोक है वो क्या है कि साइंटिस्ट जैसे गॉड इज नॉट देयर एवरीथिंग, मतलब मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट का कहना है कि हम साइंस में विश्वास रखते हैं, भगवान में नहीं। लेकिन जब नाम देने का समय आया एटम को, तो लिख दिया गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल लिख देने से उन्होंने बोला गॉड पार्टिकल। तो फिर भगवान में विश्वास नहीं, लेकिन भगवान का नाम ले लिया, बिकॉज आगे उनके समझ के परे था। सो ये अविद्या जो है, ये हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा शाप है। जैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण को विद्या को कृष्ण के बारे में सुनना छोड़ देते हैं, तो हम अविद्या के पात्र बन जाते हैं। और इसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माया अपहृत ज्ञान। माया जो है वो बुरी तरीके से हम लोगों के ऊपर हावी हो जाती है। हम बहुत पढ़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जो भारतवर्ष के दूसरे प्रेसिडेंट बने, आप उनके बारे में देखिए। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, श्रीरंग मतलब श्री वैष्णव संप्रदाय से थे और पढ़े लिखे इंसान थे। तो उन्होंने जब गीता के ऊपर टिप्पणी लिखी, तो उन्होंने क्या लिखा कि जब भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद याजी मम नमस्कुरु, ये पर्टिकुलर श्लोक के बारे में वो लिखते हैं कि आपको कृष्ण को समर्पण नहीं करना है, कृष्ण के अंदर से बोल रहा जो भगवान है उसको समर्पित करना है। तो ये कैसा भगवान हुआ जिसको कृष्ण का शरीर का आधार लेना पड़ा गीता सुनाने के लिए? मतलब इससे बड़ा अविद्या और इससे बड़ा आवरण और क्या हो सकता है? अविद्या और आवरण इज ऑलमोस्ट द सेम। तो आप सोचकर देखिए कि ऐसे अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेम सखा प्रभु कुछ बोल रहे हैं, प्रेम सखा प्रभु ने बोला राधापाद प्रभु आप ऐसा ऐसा कीजिए। गोपीमन और प्रभु ने आया और उस इंसिडेंट को बोला प्रभु प्रेम सखा प्रभु का बोलने का मतलब ये नहीं ये था, आप इसको ऐसा कीजिए। Why to give interpretation when everything is straight? अगर समझो एक पर्टिकुलर किताब है, वो अगर किसी ने लिखा है, तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का लिखा हुआ किताब है, ठीक है? तो अगर वो बोलते हैं कि सर्वधर्म, कृष्णा से सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, तो दूसरा बोलता है कि नहीं, उनका बोलने का मतलब ये है कि आप उस भगवान को शरण में जाओ जो कृष्ण के माध्यम से बोल रहे हैं। लेकिन डज इट से दैट कृष्णा इज टेलिंग सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, मेरे पास आइए? वो बोलते हैं कि नहीं, उसके पास मत जाइए, उनके अंदर जो भगवान बोल रहे हैं उनके पास जाइए। तो ये भगवान कौन है वो कौन तय करेगा? तो ये है अविद्या। इसको हम जड़ विद्या भी कहते हैं। और इसको हम नॉर्मली हम सरस्वती माता को पूछते हैं क्योंकि वो विद्या की देवी है। लेकिन देयर आर शुदा सरस्वती एंड दुष्ट सरस्वती। आप सुनकर हैरान होंगे कि ये दुष्ट सरस्वती कैसे हो सकती है। वो विद्या जो आपको जड़ विद्या सिखाती है इस भौतिक जगत में रहने के लिए और मेहनत करके पालन पोषण करने के लिए, वो जड़ विद्या होता है। और वो दुष्ट सरस्वती, वो सरस्वती जो आपको कृष्ण से दूर ले जाए। क्योंकि सरस्वती का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि शी ब्रिंग्स यू बैक टू गॉडहेड। जैसे कि जब ब्रह्मदेव ने 100 वर्ष की तपस्या की, तो उनको जो ब्रह्म गायत्री किसने दिया? उस शुदा सरस्वती ने दिया, जो भगवान नरसिम्हा की धर्मपत्नी के रूप में आती है, जो वाचा की देवी है। So she blessed. She is not the wife of Brahma. She is the original Saraswati who stays in Vaikuntha. तो वहां से जब भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से हरे कृष्ण महामंत्र और वेद निकले, तो वो जो है घूम करके ब्रह्मदेव के कान में गए। जब आपने ब्रह्म संहिता का फोटो देखा है ना, मेन पिक्चर, तो दैट गायत्री दैट वाज गिवन बाय शुदा सरस्वती। एंड शुदा सरस्वती इज द ओरिजिनल सरस्वती, जो हमको भगवान से मिलाने की विद्या देती है। तो ठीक है, हमने स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, हमको वो करना पड़ा, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि असल विद्या का मतलब ये है जो कृष्ण से हमको जोड़ता है। तेषामिवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतमा नाश्यास्म आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान क्या बोलते हैं? मेरी अनुकंपा से, तेषामिवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतमा, मैं अज्ञानता को निकालता हूँ, अविद्या को निकालता हूँ। नाश्या में आत्मभावस्त,
आपके हृदय के अंदर जितना भी है वो सब उसको निकाल के ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान के दीप से। कौन सा ज्ञान का दीप? नॉट अवर MBAs, शास्त्र ज्ञान, शास्त्र चक्षु, उस चीज से वो भगवान हमको अलंकारित करते हैं हमारे। इसके लिए हमारा सबसे पहला श्लोक क्या होता है? हमारा जो प्रणाम मंत्र शुरू कर दे, ओम अज्ञान, बोलिए, कोई बोल सकता है? ओम अज्ञान, हाँ बोलिए। ज्ञानांजन। तो ये जो ज्ञानांजन है, ज्ञान का अंजन लगाना मतलब अविद्या से दूर होना, अधर्म से दूर होना, आवरण से दूर होना, विक्षेप से दूर होना। और इसका आशीर्वाद कैसा होता है? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम, आंखें खुल गई। आंखें कैसे खुली? कि भगवान के प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या अच्छा, ये आपको कहां तक लेके जाता है? ब्रह्म संहिता में इसके बारे में बताया, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न, ज्ञानांजन से प्रेमांजन, ये डिस्टेंस हमको कैरी फॉरवर्ड करना है। फ्रॉम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम, गुरु ने अपनी आंखें खोल दी, हमको एकदम हृदय में बता दिया। तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यमशाम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सो दिस इज द डेस्टिनेशन। शुरुआत किधर होता है? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। So you see these two destinations now, and we are the devotees who are working on this destination. कि वो ज्ञानांजन के बाद में वो प्रेमांजन कब आएगा? जिसमें मैं यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूप, वो श्याम सुंदर जो इसके गुण और रूप अचिंत्य है, दैट इज आवर डेस्टिनेशन। इसमें एक और वंडरफुल श्लोक है, यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यान में बैठे हैं वो, कौन सी गति के लिए? विष्णु की गति के लिए। पश्यन्ति यम योगिनः, पश्यन्ति मतलब देखना हृदय के अंदर। यस्यांतम न विदुसुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। ये श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का पहला श्लोक है। इसको हम लोग हर एक अच्छे मौके पर गाते हैं। इसको यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत सुन्वन्ति दिव्यस्तम। तो ये जो कंप्लीट प्रक्रिया है अविद्या से विद्या की तरफ जाना, आवरण वृत्ति मतलब सबको ढके रखना, उस आवरण वृत्ति से बाहर निकलना, या उस आवरण वृत्ति से बाहर निकल करके अपने आप को भगवान के स्मरण। तो इसमें क्या होता है? जो माया के ये जो अचूक अस्त्र है, अविद्या हो गया, अविद्या हो गया, अधर्म हो गया, आवरण हो गया, चलो इन तीन से हम कैसे भी निकल गए। ये जो जहाँ पर जो बैठे हुए कुछ भक्त हैं, अभी हम कितने 18 जन बैठे हैं, तो वी आर लिटिल बिट स्मार्ट। अरे नहीं, हमको ये नहीं करना है, हमको शिला प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़नी है, हमको लोगों को प्रचार करना है, प्रचार करके हम लोग को लोगों को लेके जाना है। वी नो दैट माया इज अटैकिंग अस। तो वो आवरण का जो चद्दर है उसमें से छेद करके हम लोग बाहर निकल गए। Some little bit smart souls like us. Okay, चलो let's go out. तो 3 ऑलमोस्ट आप लोग ने खत्म कर दिया। जब 3 खत्म हुआ तो विक्षेप मतलब टू कट, टू डिवाइड, टू पियर्स। ये जो विक्षेप वृत्ति है माया की, ये बड़ा खतरनाक है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप यहां से रॉकेट लॉन्च करते हैं चंद्रमा की तरफ या मंगल ग्रह की तरफ, जो आजकल चल रहा है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये लॉन्गिट्यूड, ये लैटिट्यूड, दिस इक्वेटोरियल। ये तो अगर उसमें 1 डिग्री का भी फर्क हो गया, सिर्फ 1 डिग्री का, तो आप क्या बोलोगे? 1 डिग्री, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 0.5 डिग्री, क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये आपको जो आंखों से नजर भी नहीं आएगा, you are unable to see that difference। लेकिन जब आप लॉन्च करते हो और जब ये जाता है 1.5 लाख
2.5 लाख 3 लाख किलोमीटर के दूरी पर जब जाता है तो उधर जो है वो मार्स से इतना दूर हो जाता है कि मार्स तो छोड़ो, जुपिटर के ऑर्बिट में चला जाता है। इधर आपको नजर में नहीं आया वो इतना सा चीज के लिए इट हैज गॉन। तो ये जो जब भी हम गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते थे कोरिया है कि अरे ना मने कोई आशा को अगर हम लोग ने बांध कर नहीं रखा ये स्टेटमेंट को, तो वी विल मिस योर गोलोक वृंदावन बाय माइल्स। कैसे प्रभु चलता है ना, क्या हो गया इसमें, कर ही रहे हैं ना, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो क्या फर्क पड़ता है। ये जो थोड़ा बहुत इधर उधर है वो विक्षेप वृत्ति है। अब देखो, आपने सुना होगा कि कई बड़े बड़े योगी तपस्वी नीचे गिर गए। कैसे गिर गए? विक्षेप वृत्ति की वजह से गिर गए। क्योंकि माया जो है शीज मम माया दुरत्तया, मेरी माया जो है वो बहुत ही दुरत्त है, बहुत ही कठिन है। माम एव ही प्रपद्यन्ते माया में तम तरते। बोले प्रभु आपने बोला था कि कृष्ण के शरण में जाओगे तो माया छोड़। मैं कृष्ण के शरण में हूँ, हाँ कृष्ण के शरण में हूँ, लेकिन क्या कृष्ण ने बताया वैसा शरण लिया आपने, या अपनी इच्छा से जो पसंद है वो लेके बाकी छोड़ दिया? अगर तो आपने भगवान के बताए रास्ते को पक्का ले लिया है तो विक्षेप वृत्ति तो आपके नजदीक भी नहीं आ सकती। नहीं तो भगवान के शरण में रहते हुए भी देखो, अभी आज इस्कॉन के अंदर देयर आर सो मेनी, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी कभी कभी चलता है। धर्म के नाम पर कितने सारे कंट्रोवर्सी इंडिया में चलते हैं। लाइक हम सब खुश हैं कि श्री राम को अयोध्या में स्थापित कर दिया, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। लेकिन कितने लोग भक्त बने उधर जाने के बाद? हाउ मेनी ऑफ टुक राम नाम एज परमानेंटली इन देयर लाइफ? हाँ, राम आ गए, दैट्स इट। सो व्हाट नेक्स्ट? मंदिर बन गया, दैट्स इट। हाँ, वर्चस्व मिल गया, चलो ठीक है, वी वर एबल टू पुश वन समुदाय एंड टेक द प्लेस बैक टू अस। इज दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड? विल इट गिव अस बैक टू गॉडहेड? क्या हम वापस भगवान के पास चले जाएंगे सिर्फ अयोध्या बनाने से? अगर भगवान कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, और अगर जब भगवान ये भी कहते थे कि अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते सततम कीर्तयन्तो यतन्तश्च दृढ़व्रतः समोहम सर्वभूतेषु न मद्वेषो अस्ति न प्रिया। So there are so many promises that Krishna has made, but are we ready for it? तो विक्षेप वृत्ति में क्या होता है कि आप जब शास्त्र पढ़ते हो तो सबसे पहले उसको गुरु के माध्यम से पढ़ो। Otherwise, Maya will make you feel that you are better than your guru in understanding things, and that is the first sign of downfall. विक्षेप वृत्ति का इतना पावर होता है कि विद्वान से विद्वान मनुष्य को भी माया अपहृत ज्ञानम हो जाता है। इसके लिए विद्या विनय संपन्न है। विद्या में विनम्रता होनी चाहिए कि जब आप विद्या की संपन्नता कब होती है। लेकिन आजकल क्या है, विद्या अहंकार संपन्न हो, आई एम नॉलेजेबल, हु इज यू टू टेल मी? अरे तुम मुझे सिखाओगे? सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे भाई, हम विद्यार्थी हैं, अर्थार्थी नहीं है। अभी जीवन के इस एज में, एट द एज ऑफ 56, नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज एक रिटायरमेंट लेकर के आई एम जस्ट सिटिंग एंड स्टडिंग एंड एक्सेप्टिंग थिंग्स फ्रॉम एवरीबॉडी। क्योंकि एक चीज समझ में आता है कि जीवन भर विद्यार्थी रहो, बिकॉज इफ यू आर अ स्टूडेंट यू विल ऑलवेज सक्सीड। सो मेरा हम सबसे यही निवेदन होगा कि हम लोग आगे चल के भी एक अच्छे विद्यार्थी बने, एक अच्छे सहपाठी बने, कोशिश करके जो विक्षेप वृत्ति है माया देवी का उसको नमस्कार करके देखो। माया देवी इज नॉट बैड, शी इज नॉट रॉन्ग, शी इज कृष्णा सिस्टर, हाउ शी कैन बी सो बैड? बट शी इज डूइंग अ थैंकलेस जॉब। उसका काम है हमको सुधारना। मेरा आप लोगों से सबसे एक प्रश्न है, इधर एनी माताजी हियर? माताजी से पूछूंगा एक प्रश्न। हाँ, आई थिंक देयर आर 2-3 माताजीज ऑन बोर्ड। घर में जब बच्चा बात नहीं सुनता है तो पहला थप्पड़ कौन मारता है? माँ मारती है, बाप मारता है? अरे माताजी जवाब दीजिए। फादर विल टेक हिज टाइम, राइट? सबसे पहला माँ क्या करती है? कान मरोड़ती है और थप्पड़ मारती है।
क्या उसको बच्चे से प्यार नहीं है इसके लिए मारती है, या वो चाहती है कि बच्चा सही हो जाए इसके लिए मारती है? क्या है उसका फॉर मनोवृत्ति? बेटरमेंट, तो सही और हो जाए इसके लिए। एब्सोल्युटली, थैंक यू। सो व्हाई टू ब्लेम माया देवी? गलती हम करें, दंगे हम करें, लफड़े हम करें, और माया देवी को बोले कि तुम दुरत्या हो? नो, दैट इज नॉट राइट। शी इज ओनली डूइंग व्हाट अ मदर हैज टू डू। लेकिन ये भी तो देखिए कि उसी माया देवी के आशीर्वाद से आपको कृष्ण प्राप्ति होती है। जब वो देखती है कि आप सुधर गए हो, आप भगवान के, तो वो आपको टेस्ट करती है। ये जो 4 महीने बताया ना, अविद्या, अधर्म और आवरण और विक्षेप, these are the tools, these are the tools by which she tests you। जैसे कि आप बच्चे को एग्जाम में भेजते हो तो बच्चे को एग्जामिनर जो है अलग अलग तरीके से टेस्ट करता है कि ये सक्षम है कि नहीं। तो उनको उनके ऊपर गाली न देख करके उनको ये बोलना है कि माय डियर मदर, I have made so many mistakes in my life that I lost Krishna. Now I want your blessing and support to understand Krishna. ऐसा एक नमस्कार करके आप आगे बढ़ के देखो, the same Maya will become योग माया। महात्मनास्तु माम पार्था दैवी प्रकृति आश्रिता। ये दैवी प्रकृति कौन है? दैवी ईशा गुणमय मम माया दुरत्यया। ये वही दैविक प्रवृत्ति वाली देवी है जो योग माया भी बनती है, महामाया भी बनती है। भौतिक जगत में जब ये आती है तो महामाया के रूप में आके हम सबको थप्पड़ मारती है। लेकिन यही जब गोलोक धाम में जाते हैं तो आप राधा रानी के संरक्षण में होते हो, वैकुंठ धाम में लक्ष्मी जी के संरक्षण में होते हो, अयोध्या धाम में सीता के संरक्षण में होते हो, द्वारका में रुक्मिणी के संरक्षण में होते हो। What else do you want? And down she is Durga. She will test you to your ultimate level. And जब आप गुरु के छत्र छाया में चले जाते हो, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिनः। So then Maya Devi says, okay, good. At least he has accepted a guru, वो भी परंपरा में, fantastic. Now let me see by testing him. तो गुरु आपको ज्ञान देता है, माया आपको उस ज्ञान के रेस पर टेस्ट करती है। So you see the two parties, how they are working in tandem. One is empowering you with knowledge and one is testing that उस ज्ञान को विज्ञान। ज्ञानी बहुत होते हैं, there are many people who are knowledgeable, but उस knowledge को practically implement करके life को जीना वो विज्ञानी होता है। So Maya Devi ensures that whatever knowledge you got from your guru, she creates a situation जिससे कि आप उस ज्ञान को यूज करके उसको आप अपने लाइफ में उतार सको। तो व्हाट इज रॉन्ग विद माया? और हम सब देवी धाम में रहते हैं, माइंड यू, उसी के जगत में रहते हैं। तो एनर्जी इज सेम। उस एनर्जी को कन्वर्ट करके आप हीटर बनाते हो रूम को गर्म करने के लिए, उस एनर्जी को आप एसी बनाते हो रूम को ठंडा करने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रिसिटी खाली आपको गर्म करेगा, एक इलेक्ट्रिसिटी वही रहेगी, सोर्स वही है, लेकिन उस सोर्स से प्रक्रिया अलग होती है। तो आप कौन सा प्रक्रिया चुन रहे हो, ये आप पर निर्भर करता है। So it's 9:10 now. I'll just give Viram to the class and we can keep it for a question answer session. Gopi Monar Prabhu, anything from your side? Is it okay?